दिवाली इधर आइए। दिल चालू है, चालू है। हाँ, मैं प्रेफर करूँगा ऐसा। अच्छा, ज़्यादा सही रहेगा नहीं। जय भीम। भाई, बबली भाई स्टेज पे आए। बबली भाई स्टेज पे आए। जय भीम। सब बोलो। मेरा नाम पीयूष कुमार लोहेरा है। मेरा नाम पीयूष कुमार लोहेरा है। मैं आपको, जैसे कि आपको पता होगा, हम यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जयंती बनाने आए हैं। ये कुछ लाइनें भीमराव अम्बेडकर के नाम। स्वीडन में उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था। लंदन से उनके लिए बुकर प्राइज की घोषणा की जा रही थी। फिलीपींस में उनके नाम पर रेमन मैगजीन पुरस्कार के लिए विचार विमर्श चल रहा था। ऑक्सफोर्ड में उनके नाम पर चेयर स्थापित की जा रही थी। हार्वर्ड में उनकी राइटिंग और स्पीकिंग को सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनको पिछली शताब्दी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट करार दे रही थी। जय भीम। जोरदार मेरे बच्चे के लिए। नंदिनी
Good morning, everyone. I am Nandini, the daughter of Mr. Veer Singh, respected chief guest. Today, I am going to speak about a great leader and social reformer, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as Baba Saheb Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th of April 1891 in Madhya Pradesh. He faced many difficulties in his life because he belonged to a lower caste, but he never gave up. He studied very hard and became one of the most educated people of his time. He earned degrees from universities in India, England and United States of America. He was one of the first Indians to earn a Doctor of Science in Economics. Dr. Ambedkar fought for the rights of poor people and untouchables. He believed that everyone should be treated equally no matter what their caste or religion. He worked hard to remove discrimination from our society. He was also the chief architect of Indian Constitution. He made sure that our Constitution gave equal right to all citizens. Because of his efforts, we all enjoy freedom and equality today. In conclusion, Dr. B.R. Ambedkar was a true hero who dedicated his life into justice and equality. Let us all try to follow his path and make our country a better place. Thank you and Jai Bhim. बहुत अच्छा दिव्यांश प्लीज कम टू स्टेज ये भी बच्चा आपका Jai Bhim. Hello, my name is Divyansh, and so today I am going to talk about the person who worked for India as jurist, economist, politician, and social reformer. The person who worked for Nehru in his first cabinet as a law and justice as a law and justice minister. The person who has the title of Doctor of All Science. He is the one who wrote our constitution. As you know his name, he is called Dr. Bhimrao Ambedkar. So I have something for you. Like he had some challenges in his life, but he still overcame those challenges. But few of the students I can see, I see in my class and everywhere. So they do not study, even though they have privileges and money, etc. They don't do anything. But Bhimrao Ambedkar had nothing. Still, he had courage, confidence to do something for his people, something for humanity, something for him. I cannot tell him. He didn't care about himself. So, you all should work for it and follow his path or something. So, thank you. खुशी महरोलिया। जय भीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव डॉक्टर जी के सम्मान में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव एक महान व्यक्ति थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी कलोजी सकपाल
था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई सखपाल था। उन्होंने एक समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार दिलाया। आज उन्हीं की वजह से महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं। आज मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी कि पढ़िए और शिक्षित बनिए और अपनी समाज को आगे बढ़ाइए। और आप सभी को मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। ये जिंदगी तो सब जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जिए कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय। भारत माता की जय भीम। वंश मेरोलिया। नमस्कार, जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी एक महान पुरुष, भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर यहाँ एकत्र हुए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वह एक निर्धन और दलित परिवार में जन्मे थे, जहां उन्हें समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे जीवन पिछड़े वर्गों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में लगा दिया। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा, समता समाज और दलित मजदूर किसान पार्टी जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिससे समाज के पिछड़े वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाया जा सके। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया, जिससे हर नागरिक को बराबरी का हक मिल सके। अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन समाज सुधार और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया, बल्कि अपने स्वास्थ्य और सुख की चिंता किए बिना दिन रात मेहनत की। अंत में मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हमें अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाना है, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, सबको सम्मान व अधिकार मिल सके और हर कोई सम्मान के साथ जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और कोई बच्चा जो अपनी स्पीच तैयार करके आया हो यहाँ बोल सकता है। बेटा नाम क्या आपका? क्या नाम है? साक्षी। अक्षरा। साक्षी। आप भी बेटा क्या नाम है? साक्षी। अक्षरा बोल रहे हैं, वो आ गई है। जय भीम। मैं अक्षरा लुहेरा आप लोगों को बाबा साहेब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने मुझे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसी महान विभूति पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब कहा करते थे कि वह एक ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।
उनका मानना था कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने मजदूर वर्ग और महिलाओं के लिए महिलाओं का समर्थन किया। 1990 में उनको भारत रत्न भी दिया गया। साथियों, आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें और उनके कथनों पर चलें और अपने जीवन में उतारें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। और कोई बच्चा हो तो आ जाए मंच पर। अर्पिता, आओ बेटा, आ जाओ। अर्पिता, चाची साहब तूने नहीं बोला। अर्पिता, Hello everyone, a very good evening to you all. I am Alina Kishore. Today we all are here on the special occasion of Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti. It gives me a great pleasure to be here in front of you all to recite something about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, we all know him as the father of our Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ramji Maloji Ambedkar, Dr. Bhima Ramji Sakpal and Baba Saheb. Baba Saheb means respected father. He was born on 14th April of 1891 in Madhya Pradesh. His father was Ramji Maloji Sakpal. He was Subedar in British Army. Later he got retired. And the mother was Bhima Bai. He did his primary schooling in Satara, which is in Maharashtra, and get his secondary education from high school, which is in Bombay. He also studied at Columbia University and London School of Economics. He has 32 degrees. These are of MA, BA, PhD, DLG, Barrister at Law. He served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Mr. Jawaharlal Nehru. At that time, the girls didn't allow to learn something in the school, but they include the law that everyone should be treated equally, no matter from where the child belongs to. The child is from any caste, creed, gender, no matter that kind. There was untouchability, means the Shudras or I can say Dalits. They don't have right to touch any other caste people. If they use the way that the other caste people use, then they have to clear their footprint or they have to be punished. In 1990, the Bharat Ratna, India's highest civilian award, was posthumously conferred on him. That was a highest civilian award. In 6 December 1996, he got died due to diabetes and weak eyesight for some time. Through Dr. B.R. Ambedkar, we can get to know that importance of knowledge. Okay, that's it. Thank you. मलकागंज से भाई साहब आए हैं। आ रहे पूरा। सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं हितेश चौधरी आर्यपुरा से तहे दिल से वाल्मीकि समाज का, अपने सारे वाल्मीकि भाइयों का, नितिन भाई का, बुकर भाई का और अपने समस्त समाज का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने बड़े भव्य तरीके से इस बार आयोजन करा।
और हमें इससे लायक समझा कि भाई इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं सम्मिलित करके इसको सुचारू रूप से प्रवृत्ति बनाए। सभी का भाई बहुत दिल से धन्यवाद। एक हमारी कमेटी की तरफ से एक मोमेंटो है, आप कमेटी वाले आ जाओ एक बार ऊपर, एक बार आ जाओ भाई सारे, जो प्रधान जी है भाई आ जाओ। हमारे संजय भाई के रूबी भाई जल्दी आ जा रहा है स्टेज पे। रूबी प्रधान जी, हमारी महाशिवरात्रि कमेटी के प्रधान ज्ञान सागर जी खुद स्टेज पर मौजूद है। हमारे संगठन मंत्री भी मौजूद है। जय भीम, जय वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, जय भीम, जय भीम, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप सभी का चंद्रावल गांव में स्वागत है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम संजय भाई, संजय भाई, अरे संजय भाई, संजय भाई खिंचवानी यार, आओ चलो चलो चलो।